নমস্কার, আমি স্বপন ইভিএম নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে একটি ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো যে এম নিউজ নেটওয়ার্কের থেকে সেই ভিডিওটা আমাদের পাওয়া। ভিডিওটা আমার কাছে এসছে, আমি সেই ভিডিওটাই আপনাদেরকে দেখাবো। যে এম নিউজ নেটওয়ার্কের সেই ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাবো। সেখানে AIUMM সেখানকার নেতা হাফিজ গুলাব সারওয়ার তিনি কি বলছেন, এই যে ওয়াকফ বোর্ড, এই ওয়াকফ বোর্ডের উপর কেন গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ কেন এখনো পর্যন্ত ওয়াকফ বোর্ডকে প্রশ্ন করছেন না, তাদেরকে কেন জিজ্ঞেস করছেন না, মোদির নিয়াত ঠিক নেই বলে প্রচার করে আসলে ব্যাপারটাকে অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছে, এটা কিন্তু তিনি পরিষ্কার ঠিক সেই কথাটাই বলছেন যে কথাটা গোটা মুসলিম সমাজের বেশিরভাগ মানুষের কথা। আমরা যেটা শুনেছি আজকে সেই কথাটা হাফিজ গুলাব সারওয়ার তিনি বললেন, আমরা সেই কথাটাই শুনে নেবো তার মুখ থেকে, তারই ভিডিওতে। যে এম নিউজ নেটওয়ার্কের সেই ভিডিওটা আমি আমাকে আমার এক দর্শক বন্ধু পাঠিয়েছে, আমি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সেখানে প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরা হয়েছে যে আসলে ওয়াকফ বোর্ডের এই যে সম্পত্তি, এটা কিন্তু মুসলমানদের কোনো কাজে লাগেনি এবং আজ পর্যন্ত ওয়াকফ বোর্ডের কি আয় ব্যয়ের হিসেব এটা কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। কি তাদের আয়, কত তাদের ব্যয়। এবং তিনি এই কথা বলেছেন, এক সময় যারা ঘুরে বেড়াতো, বলছে আমরা বাইকে গেলে আমাদের তেল ভরতে গেলে আমাকে হিসেব করতে হয়, আর এক সময় যারা হেঁটে ঘুরে বেড়াতো তারা এখন 100-200 কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে এই ওয়াকফ বোর্ডে বসে। কি তাদের কারণ, এই সমস্ত বিষয়, অর্থাৎ এইটা যে একটা বিপুল দুর্নীতি হয়েছে, বিপুল দুর্নীতির জায়গা, এটা কিন্তু বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এবং নরেন্দ্র মোদী যে সেই দুর্নীতিটাকেই দূর করতে চাইছেন, এই কথাটা তিনি যখন বলছেন, রাহুল গান্ধীরা কিন্তু এই কথাটা শুনেন না। রাহুল গান্ধীদের আমার মনে হয় হাফিজ গুলাব সারওয়ার যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন, আমার মনে হয় সংসদে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধীর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া উচিত। এবং রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তারা এই প্রশ্ন তুলছেন, যে তাদের সঙ্গে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস, আমাদের রাজ্যের সুদীপ ব্যানার্জি তিনি যেমন এই প্রশ্ন তুলেছেন, যে তার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার ধারণা হাফিজ গুলাব সারওয়ার তিনি এই উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। AIUMM এর নেতা তিনি এই উত্তরগুলো দিয়ে দিয়েছেন, তার কাছে উত্তর পাওয়া যাবে আসলে ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে নরেন্দ্র মোদী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই পদক্ষেপ কতটা সঠিক। আমরা আসুন সকলে মিলে এই যে এম নিউজ নেটওয়ার্কের যে হাফিজ গুলাব সারওয়ার তার যে বক্তব্য, এটা গোটা বক্তব্যটা শুনি, শুধু শুনবো না, এটা আমরা শেয়ার করব সকলের মধ্যে। আর আপনারা ইভিএম নিউজ যারা এখনো পর্যন্ত ইভিএম নিউজটা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করুন এবং এই যে ইন্টারভিউটা যেটা আপনাদেরকে এখন আমি দেখাবো, ইন্টারভিউটা দেখুন, সকলের সঙ্গে শেয়ার করুন। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है। अच्छा तो क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है ना भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे माँ ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निमटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बातें। सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है हमें। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आज तक कभी आय व्यय का ब्यौरा किसी को दिया ही नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके कैमरे पर, पूरे भारत में किसी मुसलमान को पकड़ के ये माइक लगाना, बोलना वक्फ बोर्ड ने 1 साल में कितना कमाया बता दो। बड़े से बड़े दिग्गज लीडर जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का बड़ा नेता हूं, उनसे भी पूछ लेना, अगर बता दें तो मैं गुलामी करूंगा। किसी को कुछ नहीं पता, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी पता नहीं, बस एक ही चीज़ पता है, कौन सा टॉप 3 साइड 2 साइड प्लॉट है वक्फ बोर्ड का, उसको कैसे घोटाला करके दाएं बाएं किया जाए, बनिया को बेचा जाए, ब्राह्मण को बेचा जाए, सरकार के मंत्री और सांसद को बेचा जाए, ताकि बड़ी रकम लेकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। और आपको यकीन नहीं होगा, वक्फ बोर्ड के अब तक जितने भी चेयरमैन भारत में हुए हैं अलग अलग राज्यों में, आप उनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल लोगे तो किसी का 100 गुना, किसी का 50 गुना संपत्ति बढ़ गया। कहाँ आसमान से टपका है? गुलाम सरवर भी तो रोड पे है, आप भी तो हो। हम लोग को क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं भाई? हम लोग को तो बीड़ी सिगरेट चाय के पैसे नहीं मिलते। हम तो मोटरसाइकिल में तेल डलाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि आज 100 रुपये का डलवाया चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपके पास छू मंतर मशीन अलाउद्दीन का चिराग आ गया कि कल तो आप पैदल चल रहे थे,
और आज अचानक जो है 200 करोड़, बाप रे बाप, गिनने में लगेगा कई दिन हमको, बोलने में तो बोल देते हैं 2 मिनट में, 200 करोड़। अभी दिल्ली के चेयरमैन जो है अमानतुल्लाह खान साहब, हमारे भाई, ज़रा इनकी संपत्ति जांचिए कितना बढ़ गया। तो सवाल न पूछें यार, मुसलमान हो, सच बोलने से डरोगे, सवाल न पूछोगे। अपने लोगों को बचाने में हम झूठ पर झूठ बोलते चले जाएं, और सरकार अगर कुछ लाए विधेयक तो हम विरोध करने लगें। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार प्रस्ताव लाए, लेकिन सरकार के प्रस्ताव लाने से पहले मुस्लिम संगठनों को चाहिए था कि मसौदा खुद दे देता, लेकिन मसौदा हमने दिया ही नहीं। चिंतन नहीं हमारे पास, हम कभी अपने समाज के बारे में सोचते नहीं। अगर हम सोचते कि गुलाम सरवर यार वक्फ बोर्ड में बड़ी लूट हो रही, किसी ने बेचारे ने, हमारे बाप दादा परदादा कोई हमारे पूर्वजों ने दान दिया था ये सोचकर के गरीब मुसलमान बच्चे, यतीम, बेवा, उसका कुछ भला हो जाएगा। आपने किसी को आज तक किसी का भला नहीं किया, लूट हो रहा। यार एक प्लान बनाया जाए, कोई एक्शन प्लान, रोड मैप कुछ है ये नहीं है संगठन के पास। ITO पे जमीयतुल उलमा हिंद का ऑफिस देखा आपने, वक्फ बोर्ड का है। तो आप तो वक्फ बोर्ड के 3 साइड 2 साइड लूट रहे हैं, ठीक है, अरबों खरबों की संपत्ति होगी वो जो लोकेशन है, और गरीब को तो कुछ मिला नहीं। अब जब विधेयक आ रहा था आप उछल रहे हैं, मतलब आगे भी लूटने की मंशा आपकी है। एक मेरे साथ जो घटना घटी मैं उसको भी शेयर कर दूं। प्रतापगढ़ ज़िला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक मस्जिद है, उस मस्जिद का डिस्प्यूट आया मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसे जो है डिस्प्यूट है मस्जिद में, और मुतवल्ली जो है जिसको होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंटल जो जिसको होना चाहिए वो मुतवल्ली ना होकर कोई दूसरा उस पर कब्जा किए हुए है। मैं उस फाइल को जब लेकर आगे बढ़ा, लखनऊ गया, तो पता ये चला कि जिस डेट में मुतवल्ली नियुक्त किया गया जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति उससे पहले मर चुका था। मतलब समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? यानी आज 5 अगस्त है, आज जिसको हम मुतवल्ली नियुक्त कर रहे हैं वो ऑलरेडी 2-4 महीना पहले मर चुका। कितना बड़ा करप्शन है कि मरा हुआ आदमी भी मुतवल्ली, और जो वाकई उसका हकदार है, डॉक्यूमेंट जिसके पक्ष में है, वो सड़क पर घूम रहा। ये तो लूट और खसोट हो रहा वक्फ बोर्ड में। और जब सारा प्रक्रिया कोर्ट का पूरा कर लिया, फाइल चेयरमैन के पास आ गया, तो हमें ये खबर दी गई कि 1.5 लाख रुपया चेयरमैन साहब को चाहवा चढ़ाइएगा, आपके फेवर में कर देंगे। आप सोचिए कि गुलाम सरवर जैसे चेहरे को तो वहाँ दौड़ा दिया, 1.5 लाख मांग लिया, बाकियों का क्या हाल होता होगा। पर आरोप ये है ना कि सरकार की संपत्ति पे नजर है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति। लगाते रहिए आरोप। जब हमने गलत कर दिया, हमने अपने बेटे को सही नहीं पाला, वो चोर डकैत बन गया, तो अब तो भुगतेंगे ना हम। नज़र हमेशा उल्टा आरोप, सरकार की नज़र सही नहीं है। तुम्हारी जब तुम्हारा किरदार सही नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, तुम्हारा जो काम सही नहीं है, जब हम खुद ईमानदार नहीं हैं, तो सबके सोच पर और सबके नीयत पर हम सवाल उठा क्या फ़ायदा। हमें पता है योगी जी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हमें पता है मोदी जी अच्छा नहीं सोच सकते, मतलब क्या? अबे हम तो अच्छा सोच सकते थे अपने बच्चों के लिए, जब हमने नहीं सोचा तो हम दूसरों को क्यों बोलें। इसलिए मैं बिल्कुल अलग ढंग से बात रखता हूं। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की, मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला। हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है। अच्छा तो क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है ना भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे माँ ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निमटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बातें। सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है हमें। देखिए, मुसलमान अगर हैं, कहा जाता मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, कहा था, लेकिन हम ही धोखा दे रहे हैं अपनों को। गैरों को छोड़ दो, अभी हम अपनों को धोखा दे रहे हैं, अपनों से झूठ बोल रहे हैं। हमें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे मोदी जी के रूप में मिले, योगी जी के रूप में मिले, अमित शाह जी के। मैं तो कहता हूँ इससे भी बड़ा कोई तगड़ा वाला आए, खूब पीटे, हमको सीधा कर दे, तब हम सीधे हो जाएंगे। उम्मीद है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक रखा जाएगा। संभावनाएं हैं कि 40 बिंदुओं पर सरकार ने संशोधन किया है, 40 नए बिंदु उसमें जोड़े हैं। इस सिक्के का भी 2 पहलू है। कोई भी कहावत है कि आग लगती है तभी धुआं उठता है। वक्फ बोर्ड के तमाम मामले देश के सामने हैं। वक्फ बोर्ड के जितने भी मतलब संपत्तियां उनकी हैं, वो उसका बंदरबाट लगातार चल रहा है इस देश में। दिल्ली देश की राजधानी है,
दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि अगर पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ का सही वितरण कर दिया जाए तो 10,000 मुस्लिम परिवार, गरीब परिवार सीधे सीधे उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में 76 वर्षों में 1954-55 से लगातार वक्फ एक्ट जब से नेहरू जी ने बनाया तब से अब तक एक घर दिल्ली में हमको बताइए कि वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब मुसलमान को एक घर बना के दे दिया हो। एक बात ये। दूसरा, एक कॉलेज या स्कूल बताइए कि वक्फ बोर्ड ने एक कॉलेज या स्कूल खोल दिया हो। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताइए, एक कोचिंग सेंटर बताइए, एक अस्पताल बताइए। क्या भला होता कि वक्फ बोर्ड एक बेहतरीन चैरिटी अस्पताल खोलता, धर्मार्थ बोर्ड लगाता, वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित अस्पताल, और हज़ारों लोगों का इलाज होता, उसमें हिंदू मुसलमान सबका हो जाता, गरीबों का लिख दिया जाता, बीपीएल परिवार को देंगे, गरीब को देंगे, कार्ड दिखाओ और इलाज कराओ। मज़ा आता, मैसेज जाता, कोई विरोध नहीं करता। एक मैसेज ये भी जाता कि मुसलमानों ने दान किया, लाभ पूरा देश उठा रहा। न तो वो आप वो कर सके, न तो ये स्पेशली जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जैसे ओखला है, मुस्तफ़ाबाद है, सीलमपुर है, कहीं है, आपने कहीं कोई अस्पताल स्कूल नहीं खोला। ये कितना हास्यास्पद है कि अरबों की संपत्ति आपके पास है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आखिरी बात सुनिए, हैरानी होगी। वक्फ बोर्ड में बहुत सारी मस्जिदें हैं, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह दिया जाता, 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाह नहीं देते, और ये कहते हैं कि सरकार ग्रांट देगी तब तनख्वाह मिलेगा। सरकार आपको ग्रांट देगी, और जो वो टैक्स, जो किराया और जो पैसे वसूली हो रहे हैं वो कहाँ जा रहा? ना ऑडिट रिपोर्ट है, ना कोई सार्वजनिक, कभी एक बार भी आय और व्यय का ब्यौरा कभी वक्फ बोर्ड ने सार्वजनिक नहीं किया कि इतना आया और इतना हमने खर्च किया। भाई आया तो कहाँ से आया और गया तो कहाँ गया? हर मस्जिद कमेटी में, मदरसे कमेटी में ये सिस्टम है हमारे यहाँ कि महीने में एक या हफ्ते में आमदनी और खर्च का बोर्ड लग जाता। तमाम मस्जिदों में हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई इतना आमदनी हुआ, इतना खर्च हुआ, इतना बचा है या माइनस है या जो भी है वो लिखा जाता।